Good morning, students. Good morning, all. The last class I discussed about the second chapters, the first part of the second chapters, the what is the structure of the flowers and the different part. The first pre-fertilization event start. That is the word. That is the gamete formation. And the gamete formation. Before going to now, you have to know about the word. The different part of the flowers and how the gamete form starts. तो first हम पढ़े थे stamen के बारे में and what are the microsporangia form, how the microsporangia form and the TS of stamen also, that is TS anther we learned the last class. That today we learn the word that is the microsporangia, that is the word the formation of pollen grain, how the formation of pollen grain, that is called microsporangia, and the process is called the word microsporogenesis. So let's think about the microsporogenesis. So microsporogenesis किसे कहेंगे? The microsporogenesis. The microsporogenesis. The process of which the formation of microscope, that is what the formation of microspore from pollen mother cells by mitotic division is called the what? Microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनिस किसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट? फ्रॉम द पॉलन मदर सेल, दैट इज कॉल्ड meiotic division, that is called the microsporogenesis. The microspores form by clusters and the four cells called the microspore tetrad. तो माइक्रोस्पोर बहुत क्लस्टर में रहते हैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप में रहता है, लेकिन उसमें से चार को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड. इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर tetrad. As the anther matures, it is dehydrated and the microspore dissociate develops into the pollen grain. तो तब जब anther matures होता है, ये dehydrate होता है, dehydrate मतलब water loss करता है, and the microspore dissociate to form the what? Pollen grain. So let's know about the process of microsporogenesis, how the microspore formation of that. So here given, that is pollen grain mother cells, here given word. So last class we discussed about the different part of the anther, that is the epidermis and the middle layer, and last the tapetum. And inside the tapetum, that is present of the word, the present of the word, the pollen mother cell. इसके अंदर क्या present है? Pollen mother cell. The pollen mother cell is the diploid structure. Pollen mother cell क्या है? The diploid structure. Pollen mother cell having the diploid structures, and the pollen mother cell undergoes meiosis division. They undergoes what? Meiosis division to the so separates to form the what? The tetrad of pollen grains. The tetrad मतलब four pollen grains are formed. The tetrads, that is tetrads is the form. So हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्ट्रक्चर. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ which the formation of microspore and the pollen mother cell, that is called meiotic division, is called microsporogenesis. The microsporogenesis formed by the formed by the four cells, that is called microspore tetrad. तो microspore tetrad किसे कहते हैं? मैं अभी इसको बता रही थी. microspore tetrad, that is first is the word pollen mother cell. They form the microspore by the meiosis one to develop what? Microspore dad, and then goes to microspore uh,
to form the microspore tetrad, then form the what pollen grain. तो microspore tetrad से क्या फॉर्म होगा pollen grain. तो यहाँ पे क्या होगा meiosis 1 होके pollen mother cell से develop होगा microspore dad, and meiosis 2 होके develop होगा the pollen grain tetrad and microspore tetrad, and microspore tetrad से क्या होगा pollen grain. तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डैड में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है आपका 2 सेल्स रहता है जो माइक्रोस्पोर के अंदर. एक रहता है वेजिटेटिव सेल और एक रहता है जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल लार्जर होता है और जनरेटिव सेल्स क्या होता है स्मॉलर होता है. तो वेजिटेटिव सेल्स जो है उसमें से लगता है कि जनरेटिव सेल की डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और इसका लूज साइटोप्लाज्म रहता है, और जनरेटिव सेल जो फ्लोटिंग स्टेट में न्यूक्लियस जैसे रहता है. तो इसे कहते हैं टू सेल स्ट्रक्चर. ये डेवलप होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर. और माइक्रोस्पोर को अदरवाइज क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन. सो लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. द पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर इज द टू लेयर्स. द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंटाइन. एक्साइन में क्या कंपोनेंट है स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन में क्या कंपोनेंट है स्पोरोपोलेनिन. दैट इज इंपॉर्टेंट स्पोरोपोलेनिन. एंड इट इज हार्ड एंड रेजिस्टेंस बहुत हार्ड रहता है. और इसमें और एक पार्ट रहता है जॉर्म पोर. क्या रहता है जॉर्म पोर. तो ये जो आउटर पार्ट है उसे क्या कहते हैं एक्साइन कहते हैं, और इसमें जॉर्म पोर प्रेजेंट रहता है. तो अनदर पॉलन ग्रेन को किस तरह से आप लोग स्टोर करते हैं बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड क्राई प्रिजर्वेशन. कितने में -196 डिग्री सेल्सियस में ये प्रिजर्व होके रहता है. एंड पॉलन फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यूज परफॉर्मेंस द एथलेटिक रेस हॉर्स. हॉर्स में भी आप लोग का ये पॉलन ग्रेन को यूज किया जाता है फॉर द मोर मूवमेंट. रेस अधिक होगा पॉलन ग्रेन लेने से उनका एनर्जी अधिक हो जाता है और रेस में हॉर्स विन करता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है. लेकिन ज्यादा लेने से पॉलन ग्रेन एलर्जी भी होता है और वोकेस भी होता है. आस्थमा को प्रॉब्लम होता है पॉलन ग्रेन. और पॉलन ग्रेन का दो प्रॉपर्टी रहता है वायबिलिटी एंड वायबिलिटी मतलब जो उसका जॉर्म पोर जिसका डेवलप होगा उसके वायबल कहते हैं, और जिसका जॉर्म पोर में से पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं होगा उसे कहते हैं नॉन वायबिलिटी. तो ये वायबल होने के लिए कुछ समय लगता है. राइस का जैसे फ्यू मिनट में हो जाता है वायबिलिटी, जॉर्म पोर उसका डेवलप हो जाता है. सॉरी जॉर्म ट्यूब उसका डेवलप हो जाता है पॉलन ट्यूब, और स्वतः से वजह से इसे टाइम लगता है. तो यहाँ पे वही पार्ट बताई हो कि दैट इज पॉलन ग्रेन वॉल का दो रहता है एक्साइन एंड टाइन. तो एक्साइन इज द टेम्परेचर रहता है अधिक, उसमें मोर रेजिस्टेंस पावर रहता है, और इंटाइन थीन रहता है, और इसका कंपोनेंट क्या है सेलुलोज एंड पैक्टिन. सेलुलोज एंड पैक्टिन. तो देखो यहाँ पे दिया एक्साइन और ये है इंटाइन. एक्साइन का कंपोनेंट क्या है स्पोरोपोलेनिन. सॉरी एक्साइन का कंपोनेंट क्या है स्पोरोपोलेनिन, एंड इंटाइन का कंपोनेंट क्या है सेलुलोज हेमिसोलुलोज. सेलुलोज एंड हेमिसोलुलोज. दिस इज द एक्साइन कंपोनेंट एंड दिस इज द इंटाइन कंपोनेंट. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम पढ़े. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गायनेशन. टुडे ओनली वी लर्न द वर्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. दैट इज द स्ट्रक्चर. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं उसका प्रोसेस, और उसका बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन. यही हम आज पढ़े. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गायनेशन.